Hello friends, hopefully you all are enjoying your study from home. In today's lecture, we are going to proceed with the worksheet 1.1. That worksheet is based on the concept which we have learned up till now. Okay, but again before we proceed with the worksheet, let us solve the homework questions of previous lecture. So these were the simplifying questions which you have to solve in the homework. So let us proceed with the first one. Root 2 plus root 3 whole square. So this is A, then plus this is B whole square. So A plus B whole square will be equals to A square plus 2AB plus B square. So according to that, A square in the sense root 2 square, then plus 2 into A into B in the sense into root 2 into root 3 and plus B square, so root 3 square. So root 2 square will be 2 as we have learned before. Then रूट वाले टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकता है तो 2 will be as it is integer. root 2 into root 3 will be root 6. root 3 square, that will be 3. Now make sure that you have added this both, that 2 plus 3 5, as such these are the like terms. So your answer will be 5 plus 2 root 6. Okay. Then second one. Your second sum was root 5 plus root 3 and root 5 minus root 3. So as we know, it is A plus B, A minus B, and will be expanded as A square minus B square. So according to that, A square, so root 5 square, B square, so root 3 square. Root 5 square will be 5, root 3 square will be 3, 5 minus 3 will be 2. Okay. Just note down these two sums in case if you want to. Okay, or else do correction if it is there. Okay, then we will proceed with the another. Okay, hopefully you are done. As such, homework questions are there, so we have to move quickly. The whole worksheet is also there. Then third one, root 3 minus 2 the whole square. Then it is A minus B the whole square. Then that will be A square minus 2AB plus B square. So using this identity, A square root 3 square minus 2
a b and plus b square, so 2 square. Root 3 square will be 3 minus, here these two are the integers which can be multiplied, 2 2s are 4, root 3 and plus square of 2 will be 4. These two are the integers, 3 plus 4, 7, we can say like terms, and this is root wala term, so cannot be added or subtracted, so as it is. So 7 minus 4 root 3 will be your answer. Fourth one, root 2 minus 1, root 2 plus 1. So this will be, we can say that a minus b, a plus b, so it will be expanded as a square minus b square. So root 2 square minus 1 square, root 2 का square 2 and 1 का square 1, 2 minus 1, 1. Okay. Again write down this both, then we will proceed with the fifth. I think so, for which you are waiting. Okay. Then fifth sum. Root 3 plus 1 and 4 root 2 minus 2. So here binomial with binomial multiplication is there, no identity is applicable. So first term of the first binomial 2 root 3, उसके साथ पूरा second binomial जो होगा वो multiply होगा and plus 1 उसके साथ ये पूरा सेकेंड बायनोमियल जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड रूट वाला का, तो 2 4s are 8, root 3 into root 2, then that will be root 6, plus minus minus 2 2s are 4 and root 3 will be as it is, then plus 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़ा आसान, 1 into 4 root 2, 4 root 2 and plus 1 into minus 2, plus minus minus, so that will be minus 2. We can observe no like terms are there, then this will be the answer. Okay. हाँ, so फटाफट आप ये लिख लीजिए, फिर हम वर्कशीट शुरू करते हैं. Hopefully you all have received your worksheet 1.1.
Okay, here I am with my worksheet, and as such you all are with your worksheet, so no need to write questions. See, first, what do you mean by worksheet? Then first you have to solve whole worksheet, and then just you have to compare your method and answers with me. That's why this lecture is for. Okay, so in case if you haven't solved this worksheet, then please solve that worksheet first and then compare your answers. Okay, so in which question 1 is do as directed, in which first one, see, give two rational numbers lying between 0.5151115111 and 4 times 1 and 0.535353. ओके, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें दो रैशनल नंबर्स प्रेजेंट करने हैं. नाउ रैशनल नंबर्स इन द सेंस वी कैन से दैट कि ऐसे नंबर्स जो कि p by q फॉर्म में प्रेजेंट किए जा सकते हो. ठीक है, तो आप यहाँ पे दो डिजिट कंसीडर करो. 0.51 और 0.53 के बीच में क्या आता है? 0.52 आता है. ठीक है, और हम कह सकते हैं कि 0.525 भी आ सकता है. तो ये दो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में. ठीक है, इसका p by q फॉर्म 52/100 हो सकता है और इसका p by q फॉर्म 525/1000 हो सकता है. So these are the two rational numbers lying between this given two numbers. Okay. Then second one, find a rational number and also an irrational number lying between the numbers 0.303 003 0003 and 0.301 001 0001 and dot dot dot. हाँ, सो इन दोनों के बीच में एक हमें रैशनल नंबर ढूंढना है और एक हमें क्या ढूंढना है? इरैशनल नंबर ढूंढना है. तो जैसे हमने यहां पे किया रैशनल नंबर, तो देख यहाँ पे दो डिजिट तो पहले दोनों के सेम है, तो हम तीन डिजिट कंसीडर करें तो 301 और 302 इनके बीच में क्या आएगा? तो 0.302 आ जाएगा. तो इसका p by q फॉर्म जो होगा वो 302 अपॉन क्या हो जाएगा? 1000. तो ये एक रैशनल नंबर हो गया. देन इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर मतलब हमें पता है कि जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, यानी कि 0.302 है, फिर इन्हीं को फॉलो करते जाओ ना. 002 0002 देन 4 times 02 डॉट 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 हो गया. ठीक है, ओके. देन थर्ड वन, find one irrational number between 0.2101 and 0.2222 up to infinite. इन दोनों के बीच में हमें एक irrational नंबर लिखना है. अभी irrational number in the sense what? Then we can say that कि जिसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो देखो यहाँ पे हमें
तीन डिजिट कंसीडर करने होंगे, 0.210 एंड 222, इनके बीच में कौन सा नंबर आता है 210 एंड 22, क्योंकि दो अगर डिजिट हम कंसीडर कर रहे हैं तो उतना गैप है नहीं, इसलिए हमने तीसरा भी कंसीडर कर लिया कि 210 और 222 इनके बीच में। तो जैसे कि इरेशनल नंबर 0.211 इनके बीच में रहेगा। आप चाहो तो 1 2 ले सकते हो, आप अप टू 2 1 ले सकते हो, ठीक है, 2 1 2 1, ठीक है। हाँ, तो 0.211 देन 01 001 001 अप टू इनफाइनाइट, तो ये इनके बीच में क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो ये तीनों आंसर्स आप कंपेयर भी कर लीजिए, ठीक है, करेक्शन हो तो करेक्शन कर लीजिए, एज यूजुअल हर बार आपको यही करना है, ठीक है। Okay, then question 1, last sum. Find two irrational numbers between 0.5 एंड 0.55, इन दोनों के बीच में हमें दो इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ तो सर एक ही डिजिट है, यहाँ दो डिजिट है, तो अपने इसको दो डिजिट बना देते हैं, डेसिमल के बाद हम मुफ्त में जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 0 है और यहाँ पे 5 5 है, इनके बीच में हमें टू इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो देखो इरेशनल नंबर्स 0 पॉइंट, इनके बीच में 5 1 आ सकता है, 0 1 0 0 1 0 0 1 टू इनफाइनाइट, देन 0.5 2 भी इनके बीच में आ सकता है, तो ये हो गया अपना इरेशनल नंबर, ठीक है, विच इज लाइन बिटवीन दिस टू, ओके। हाँ, देन क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q, ओके। p by q फॉर्म में हमें इनको प्रेजेंट करना है, तो जिसमें फर्स्ट है 7.010, देन फ्रेंड्स यू कैन ऑब्जर्व इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग वालों का p by q फॉर्म हमारे लिए काफी इजी रहता है, कैसे, तो 7010, हाँ 7010 अपॉन डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 1000, अल्टीमेटली ये जीरो कट हो जाएंगे, तो 701 अपॉन 100, ये इसका p by q फॉर्म हो गया। सेकेंड
is 4.777, again 7, 4 times 7. Okay, so same thing here also, decimal expansion is terminating, so p by q form will be 4777 upon 10,000. Okay, हाँ, नेक्स्ट इज 0.4777 अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो होगा वो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो उनको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो अपना स्पेशल एक्स वाला मेथड, दो इक्वेशन उनको सबट्रैक्ट करना, वो मेथड हम फॉलो करेंगे। लेकिन पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay, now question 2, third one, 0.4777 bar. Okay, sorry, up to infinite. Then first step क्या था हमारा, x is equals to जो भी हमने नंबर दिया है उसको ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बार हटा देते, पर यहाँ पे ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि बार है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, मतलब कि हमें एक जीरो यानी कि किससे, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, सो 10 इंटू एक्स 10x, यहां पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा, सो 4 आगे आ जाएगा, एंड देन everything will be as it is. So this will be result 2. हमें 2 में से 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 10x is equals to 4 point ये, और x is equals to 0.477, और ये 0, ये 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 0 4 बचेगा, 10x में से x जाएगा तो 9x, so 9x equals to 43 upon 10, then x is equals to 43 upon 9 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 90. ओके, हाँ, solve this or write this and then we will proceed with the next one, 125.33 up to infinite. आपको कैसा भी नंबर दिया हो, ये मेथड आपका यही रहेगा, ठीक है। हमने इतने सारे सम्स किए इसके बेसिस पे, ठीक है, एग्जांपल्स के किए, एक्सरसाइज के किए, होमवर्क वाले किए, ठीक है, और ये भी अभी हम कर रहे हैं। सो
ऐसा एक सम तो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा ही। 'Okay, hopefully you have done. Fourth one, in which same method is applicable. One two 5.333 up to infinite. Now x is equals to 125.3333 up to infinite. Then we can observe here one digit is there which is continuously repeating. So multiplying both side by 10. So x is equals to 10x is equals to, अब यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 125 डेसिमल से पहले विराजमान है उसमें कोई चेंजेस नहीं, वो एज इट इज रहेंगे। एक 3 जो है वो आगे आ जाएगा। एज सच हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आगे, बाकी के सब as it is. Okay, this will be the result 2 minus 1. So 10x is equals to 1253.33, अब जितनी भी बार लगाना चाहो। x is equals to इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आपको खास इसमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सारे ये 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट होते हुए क्या हो जाएंगे, 0। 3 में से 5 हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका वो बोरिंग मेथड। सो 13 minus 5, तो दिस विल बी 8, 4 minus 2 will be 2, 2 minus 1 will be 1 and 1, and this will be 9x. So 9x is equals to 1128. So x is equals to 1128 divided by 9. Okay, this will be the required p by q form, वो आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे हम हमेशा लिखते थे। हाँ, फटाफट लिख लीजिए। Okay,
infinite sum. It's 0.621 something. To infinite. So x is equals to 0.621621 up to infinite. We can observe 3 digits or group of 3 digits is continuously repeating. So we have to multiply both sides by 3 zeros, in the sense 1000. So multiplying both sides by 1000. So 1000x is equals to 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 डिजिट जो है वो आगे आ जाएंगे, तो 621 आगे आ जाएंगे, फिर बाकी के 621 और आप जितनी भी बार 621 लिखना चाहें, ये रिजल्ट 1 होगा, ये रिजल्ट 2 होगा। 2 में से 1 हम रिड्यूस करें तो ये 2 पहले लिखेंगे, and then after 1 तो x इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल। और आप यहाँ पे जितनी भी बार 621 लिखे, अल्टीमेटली ये 621 अब फ्रॉम इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट होते हुए 0 बन चुका है। देन 621, देन यहाँ पे 1000 माइनस x, so 999x, so x is equals to 621 upon 999. ओके, यहाँ पे हम कैंसलेशन कर सकते हैं, तो जैसे कि 3 2s are 6, then 0, then 3 7s are 3 3 and 3, so then after again cancellation is possible, so 3 6s are 18 and 3 9s are 3 1s are 1s are 1s are, so it's 6 9 upon 111. Then 3 2s are 6 and 3 3s are 9, 3 3s are 9 and 7s are 21. So it is 23 upon 37 is required P by Q form. Okay, लिख लो ये, और अगर आपने ये रिड्यूस नहीं किया है तो रिड्यूस भी कर दीजिएगा। अब आपका आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं, 23 डिवाइडेड बाय 37, देन यू विल गेट दिस ओनली। ओके, okay. Now question 3. अब क्वेश्चन 3 जो है वो मैंने वर्कशीट में वैसे डाला है क्योंकि कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, अदरवाइज ये आपके एक्सरसाइज 1.5 आई थिंक सो उसका भी क्वेश्चन है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज, ठीक है।
ताकि वो वर्कशीट का वर्कशीट भी हो जाए और अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व हो जाए। उस तरीके से मैंने किया है, तो ताकि जब हम वो एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठेंगे तब ये क्वेश्चन हम वापस से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कर रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। इसमें हमें क्लासिफाई करना है। पहले मैं फटाफट सारे यहाँ पे लिख लेता हूँ और हम बाजू में प्रेजेंट करते जाएंगे कि वेदर दे आर रैशनल और इरैशनल। Okay. Now, first one, 2 minus root 5. Of course, irrational. We can say that as root 5 is irrational. ठीक है, अब जब 10th में जाओगे तब ये प्रूव करने वाला भी कंसेप्ट आप पढ़ोगे कि रूट 5 इरेशनल है तो कैसे है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करो तो 3 प्लस रूट 2 3 और 23 माइनस रूट 23, तो प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 जीरो हो जाएगा, तो बचा 3, तो इट्स अ रैशनल वी कैन से, ओके। देन हियर रूट 7 कैंसिल, सो इट विल बी 2/7, ये आपकी वर्कशीट में शायद आ चुका है, ठीक है। सो PYQ फॉर्म, सो रैशनल देखने से ही पता चल जाएगी इरेशनल। रीजन रूट 2 इज irrational. 2 pi of course irrational. Reason pi is irrational. Okay. तो ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। Okay, hopefully you are done. Then question 4, simplify, जिसके बेसिस पे हमने आज होमवर्क किया, ठीक है, वही। तो इसमें भी आपके एक्सरसाइज 1.5 के जो सिंप्लीफाइंग क्वेश्चंस है वो टाइप के ऑलमोस्ट हमने इंक्लूड कर लिए हैं। जो भी एक दो अगर नहीं आ रहा है तो वो आपको खुद होमवर्क में ट्राई करने हैं, ठीक है। सो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, सो इट्स लाइक a plus b into a minus b will be expanded as a square minus b square. So a square बोले तो 3 square minus b square बोले तो root 3 square. 3 का square 9, root 3 का square 3, 9 minus 3 6. Then second one, root 5 minus root 2 and root 5 plus root 2. तो ये भी आपका वही फॉर्म है, a minus b, a plus b.
will be expanded as a square minus b square. So equals to root 5 square minus root 2 square. So 5 minus 2 3. ठीक है, ये तो आपने सही किए होंगे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, तो भी फटाफट आप कंपेयर कर लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम थर्ड और फोर्थ देख लें. Okay, then third one, root 5 minus root 3 the whole square. So ये है a minus b the whole square kind of form. So a square minus 2ab plus b square. So root 5 square minus 2 root 5 into root 3 and plus root 3 square. Okay, a square minus 2ab plus b square. root 5 का square 5. root वाले can be multiplied. तो 2 as it is root 5 into root 3 will be root 15 plus root 3 का square होगा 3. So 5 plus 3 यानी कि 8 minus 2 root 15. Then fourth one, एक काम कीजिए, ये जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, आप पहले ये लिख लीजिए, फिर ही हम फोर्थ करते हैं. ओके, लिख लिया होगा आपने. नाउ फोर्थ वन, उसमें भी आइडेंटिटी तो यही हमें अप्लाई करना है. प्लस है तो प्लस के साथ करेंगे, पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बढ़ेगा. तो ये 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 द होल स्क्वायर है. 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 द होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये है a प्लस b द होल स्क्वायर. तो ये a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो ए स्क्वायर यानी कि 2√5 का स्क्वायर प्लस 2a b एंड प्लस b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 2√5 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, तो वो आप यहाँ पे समझिए कि ये 2√5 का स्क्वायर यानी कि 2√5 इंटू 2√5, तो 2 2 क्या होगा 4, √5 इंटू √5 क्या होगा 5 एंड 4 5 क्या होगा 20, इसलिए इसका स्क्वायर क्या बनेगा 20। ठीक है, आप ये चीज दिमाग में भी कर सकते हो डायरेक्टली, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 5 20, ऐसा आप सोचोगे तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, सारे हमारे इंटीजर्स 2 2 4 3 12, उनका मल्टीप्लिकेशन 12 हुआ, √5 इंटू √2 दैट विल बी √10, ओके, रूट वाले, देन प्लस 3√2 द होल स्क्वायर, तो वो भी कुछ ऐसे ही होगा, आपको दिमाग में करना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18, अदरवाइज आपका रफ पेज यूज करने में खेद ना अनुभवे। 3 3 9, √2 into √2 2, 9 2 18, so 18 will be there. These two are the like terms, so their addition will be 38, and this is the unlike term, so will be as it is plus 12√10. तो इसका आंसर आपका बनेगा 38 plus 12√10, ओके। तो यहाँ पे हमारा वर्कशीट फ्रेंड्स खत्म होता है। हाँ ठीक है, अब होमवर्क यहाँ पे मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूं, बट होमवर्क है जरूर कि ये जो पूरा हमने वर्कशीट सॉल्व किया, इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हो, जिसका आंसर आपका सही नहीं आया हो, ठीक है, वो सारे सम्स आप एक बार वापस से सॉल्व करें। ठीक है, अगर जरूरत लगे तो आप पूरा वर्कशीट भी वापस सॉल्व कर सकते हैं। अगेन आप ये लेक्चर रिपीट करें और आपके आंसर्स कंपेयर करें। ठीक है, पर ये जो हमने वर्कशीट बनाया है वो अब तक के हमने जो भी कंसेप्ट्स पढ़े उसके बेसिस पे है, तो उसके सारे समझाएंगे आपको। ठीक है, आपके उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो अब तक के कंसेप्ट्स आपके एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, सो जो भी आपके इनकरेक्ट सम्स है उनको आप फिर से वापस से सॉल्व कीजिए इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क, ओके, और वापस से आपके आंसर्स कंपेयर कीजिए। ओके, देन इन नेक्स्ट लेक्चर we will proceed with the topic rationalization. Okay, up till that take care, और ये लिख लीजिए।